Good morning and Jai Hind everyone. So dear students, welcome to Geography class. The chapter which is going on is Major Crops and Agricultural Development. We have discussed many topics in this chapter. First, we discussed about major crops. And dear students, in major crops, we discussed about many crops. Crops like rice, wheat, maize, millet, cotton, sugarcane, jute, tea, and coffee. We discussed about these crops, that what is the condition required for its growth, which countries are important producers and consumers. In today's class, we will mainly discuss about agricultural development in agriculture. So it is my humble request to all my students, please open the book and the chapter Major Crops and Agricultural Development, and mainly the topic agricultural development. So be attentive for next 30 minutes. So we are going to start the chapter Major Crops and Agricultural Development. So dear students, in Major Crops and Agricultural Development, today mainly we will discuss about agricultural development. So yes, most of the countries in the world are making sincere efforts to increase crop production to meet the needs of the increasing population. देखो, दुनिया के ज्यादातर देश जो हैं वो बहुत सिंसियर एफर्ट्स कर रहे हैं जिनसे कि उनका क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए. क्यों? बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड इफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, देन even demand of food grains are also increasing. So it is need to increase crop production, and that's why most of the countries of the world, they are making sincere efforts in agriculture to increase crop production. So how it can be achieved, dear students? So this can be achieved through increasing land under cultivation. कल्टीवेशन में ज्यादा से ज्यादा लैंड यूज करें, इंक्रीजिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन ए ईयर. एक साल में कोशिश करें एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रोन कराएं. मैंने यू आर फैमिलियर विथ मल्टीपल क्रॉपिंग. What is multiple cropping? Growing more than one crop in same piece of field in one year is known as multiple cropping. So growing more than one crop, एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो कराना. Improving irrigation facilities. देखो, there are many areas in the world where water is not available and farmers are dependent on rain only. So there should be irrigation facilities. So irrigation facilities should be improved. Then using HYV seeds, high yielding varieties of seeds. इस सीड्स का यूज करना है क्योंकि ये सीड जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रेन देता है सिंगल प्लांट में. एंड नेक्स्ट इज यूजिंग ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स. ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज. तो दीज आर द वे
where crop production can be increased. What are these? Increasing land under cultivation, growing more than one crop in a year, improving irrigation facilities, using HYV seeds, using organic and chemical fertilizers. So we will study about agricultural farms in India and the USA to understand the development of agriculture in a developing and a developed country. In this section of the chapter, हम लोग एग्रीकल्चरल फार्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे ये समझ में आ जाए कि एक डेवलपिंग कंट्री में और एक डेवलप्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट आए हैं. एंड फॉर दैट पर्पज वी हैव टेकन टू एग्जांपल्स, वन ऑफ इंडिया एज डेवलपिंग कंट्री एंड वन ऑफ USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एज डेवलप्ड कंट्रीज. तो इनके फार्म्स के बारे में पढ़ के हम समझ लेंगे कि एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट आए हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ए फार्म इन इंडिया एंड वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट. सो पहले बात करते हैं ए फार्म इन इंडिया. ओके, as you know that about 75% of our population live in villages and depend directly or indirectly on agriculture. आपको पता है ना कि इंडिया की 75% पॉपुलेशन कहां रहती है? विलेजेस में रहती है, और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट हैं? दैट इज एग्रीकल्चर. So we can say that 75% of our population depend directly or indirectly on agriculture. It provides food for human beings and raw material for agro-based industries. एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड करता है? ये ह्यूमन बींग्स को फूड प्रोवाइड करता है और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मैंने पहले भी बताया था. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज which get their raw materials from agriculture. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जिनको अपना रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? वो एग्रीकल्चर से मिलता है, या ये इंडस्ट्रीज अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं. जैसे शुगर इंडस्ट्री, उसका रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन, और ये कहां से मिलता है? ये एग्रीकल्चर से मिलता है. ठीक है. सो एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. So we have selected a farm in the Ganga plains where the land is level and fertile. तो देखो हम लोगों ने गंगा प्लेन्स का फार्म सेलेक्ट किया है, एक फार्म सेलेक्ट किया है जो कि लैंड लेवल है, और यू नो दैट जो गंगा प्लेन्स के आसपास के जितने भी लैंड हैं वो बहुत फर्टाइल है. सो the main features of agriculture here are, क्या क्या फीचर्स हैं? Subsistence agriculture is mostly practiced. ज्यादातर जो एरिया है वहां पे कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में है? दैट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. इसमें क्या होता है? द फार्मर्स फैमिली कंज्यूम्स ऑलमोस्ट द एंटायर प्रोड्यूस विथ लिटिल और नो सरप्लस टू सेल इन द मार्केट. देखो, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में फार्मर की फैमिली जो भी प्रोड्यूस करती है वो सारा कंज्यूम कर लेती है, यानी वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो अपनी फैमिली के लिए प्रोड्यूस करते हैं. तो कभी कभी उनके पास थोड़ा या बिल्कुल भी नहीं बचता है जिससे कि उसको मार्केट में सेल कर सकें. ठीक है. सो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड
The farmer's family consumes almost the entire produce with little or no surplus to sell in the market. The next is land holdings are small due to the inheritance law. लैंड होल्डिंग्स क्या है? लैंड्स जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि इनहेरिटेंस लॉ की वजह से। ये कैसा कानून है, ये कैसा लॉ है? तो द लैंड विच बिलोंग्स टू द फादर इज डिवाइडेड अमंग हिज सन्स एंड डॉटर्स। क्या है इनहेरिटेंस लॉ? कोई भी लैंड जो फादर को बिलोंग करती है, उनके ना रहने के बाद वो लैंड कितने लोगों में डिवाइड हो जाएगी? उनके सन्स में और उनके डॉटर्स में। ऐसा ही होता है ना कि जो भी लैंड, सपोज करो किसी के पास 5 एकड़ का लैंड है, ठीक है, और उसके 2 सन और 2 डॉटर्स हैं, तो जो 5 एकड़ का लैंड है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी अब जो लैंड पहले 5 एकड़ का था वो हो गया 1.25 एकड़ का। एंड दिस इज ड्यू टू इनहेरिटेंस लॉ। So land holdings are small due to the inheritance law, and this leads to the small and uneconomic land holdings. और इसी डिवीजन की वजह से लैंड होल्डिंग्स क्या हो जाते हैं? स्मॉल हो जाते हैं। और हमेशा याद रखिए कि अगर लैंड बहुत स्मॉल है तो उस पर एग्रीकल्चर करना जो है वो अनइकोनॉमिक होता है, वो बहुत एडवांटेजियस नहीं होता। ओके, आफ्टर दैट agriculture depends largely on the monsoon rain, which is uncertain, unreliable and irregular. एग्रीकल्चर जो है मेनली मानसून रेन पे डिपेंड करते हैं कि वो मानसून रेन होगा तो एग्रीकल्चर या प्रोडक्शन बढ़िया होगा। और मानसून रेन के बारे में ये जान लो, बहुत अनसर्टेन है, आया नहीं आया, बहुत अनरिलायबल है, बहुत इरेगुलर है। So they depend largely on monsoon rain, which is uncertain, unreliable and irregular. उसके बाद the next है most of the farm work such as plugging, irrigating, harvesting and threshing are done by animals and members of the farmer's family. Because there are different types of work in agriculture like plugging, irrigating, harvesting and threshing. ये सब या तो एनिमल्स से कराते हैं या फार्मर के फैमिली के मेंबर करते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये कि वो मशीन का यूज नहीं करते। तो मोस्ट ऑफ द फार्म वर्क आर डन बाय एनिमल्स and members of the farmer's family. Then the next is the production of food crop is the top priority. उनको किसी भी तरह से फूड का प्रोडक्शन कराना है, ये टॉप प्रायोरिटी है। The area under fodder crop is almost insignificant. मैंने कहा ना कि फूड क्रॉप जो है, जो ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, वो उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है। फॉडर क्रॉप्स किसके लिए ग्रोन कराते हैं? फॉर कैटल, फॉर एनिमल। वो ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट है इस गंगा प्लेन की अगर रीजन की बात करें या फार्म की बात करें। देन द फार्मर्स फेस मेनी प्रॉब्लम्स। अब जो वहां के फार्मर्स हैं, इंडियन फार्मर्स हैं, स्पेशली गंगा प्लेन का हम लोगों ने एग्जांपल लिया है। द फार्मर्स फेस मेनी प्रॉब्लम्स। Some of them are, he cannot buy enough agricultural inputs due to fund shortage. वो जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं वो परचेज नहीं कर पाते। एग्रीकल्चरल इनपुट्स कुछ भी हो सकता है, ये मशीनरीज हो सकते हैं, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, है ना, ये क्रॉप से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। वो बहुत परचेज नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास फंड नहीं है, उनके पास मनी नहीं है। He has to borrow money from a money lender or a bank. उनको लोन लेना पड़ता है, किससे? किसी मनी लेंडर से या फिर बैंक से। He has to sell his produce immediately after harvest due to
shortage of proper storage facilities. He has to sell his produce immediately आफ्टर हार्वेस्ट। जैसे वो अपने क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, अपने फसल को काट लेते हैं, उसके बाद इमीडिएटली उनको सेल करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? स्टोरेज फैसिलिटीज रहने का फायदा क्या होता? अगर उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज होता तो वो अपने प्रोड्यूस को, अपने प्रोडक्शन को संभाल के रखते, और जब प्राइस राइज करता या जब प्राइस अच्छा होता, बेहतर होता, तो वो सेल कर देते। बट बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज, ही हैज टू सेल हिज प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट। उसके बाद ही हैज टू डिपेंड अपॉन वेरियस कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू मीट हिज नीड्स। उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे डिपेंड होना होता है अपने अलग अलग नीड्स के लिए। सो such types of problems are faced by the farmers of India. After that, इंडिया में भी चेंज हुआ, एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट हुआ। सो हाउएवर द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज चेंज्ड एग्रीकल्चर इन द फॉलोइंग वे। इंडियन एग्रीकल्चर को ग्रीन रेवोल्यूशन ने चेंज कर दिया। क्या क्या चेंज किया? सबसे पहले अब हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड की, तो HYV सीड्स इंट्रोड्यूस हुआ। HYV, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। क्या फायदा है इस HYV सीड्स का? ये जो हमारा ट्रेडिशनल सीड्स है उसके कंपेयर में ज्यादा से ज्यादा ग्रेन देते हैं सिंगल प्लांट में। इसका मतलब प्रोडक्शन, HYV सीड्स यूज करने से प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फिर दूसरी चीज हुई एंश्योर एनफ एंड टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू इरिगेशन। दूसरी चीज एक एंश्योर हुई कि उनको टाइम से और सही अमाउंट में वाटर अवेलेबल करा दें। इसका मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज बेहतर हो गया। देन एडुकेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रॉपर अमाउंट में यूज शुरू हो गया। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज शुरू हो गया। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्यों यूज करते हैं? जब किसी केमिकल की कमी हो जाती है सॉइल में तो केमिकल फर्टिलाइजर्स उसको फुलफिल करता है। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, जैसे कई बार सुना होगा ना, क्रॉप में पेस्ट लग गए, है ना, उसको खा गए तो उसके लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं। इंसेक्ट लग गए, कीड़े लग गए, उसको खा गए तो इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। सो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स स्टार्टेड। लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट किया गया। जो स्मॉल पैचेस थे लैंड के, उसको मिला के बड़ा लैंड किया गया। फार्म मैकेनाइजेशन, जो फार्म्स हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड है इंडिया में, वहां पे मशीनों का यूज शुरू हो गया। डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन यूज होने लगे। प्लगिंग के लिए मशीन यूज होने लगा, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग के लिए मशीन यूज, इवन सोइंग के लिए यूज मशीन होने लगा, थ्रेशिंग के लिए यूज मशीन यूज होने लगा। देन प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऑन सॉफ्ट टर्म्स फ्रॉम द बैंक्स। एग्रीकल्चरल क्रेडिट का प्रोविजन किया गया जिससे बहुत इजी और सॉफ्ट टर्म से बैंक से फार्मर्स को लोन मिल जाए। After that, agricultural universities were set up to train the farmers. Then, agricultural universities were set up so that farmers can be trained that how they can increase their crop production. So this helped not only to enhance production but also improve to general social and economic conditions of farmers and their families. क्या फायदा हुआ इन सब चीजों का? इसने प्रोडक्शन तो बढ़ाया, डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन साथ ही साथ फार्मर्स और उनकी फैमिली के जनरल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन को भी बहुत बेहतर कर दिया, इंप्रूव कर दिया। Clear? Okay. So now we will discuss a farm in USA. अब हम लोग अभी तक इंडिया के एक फार्म का डिस्कशन किया, अब यूएसए के फार्म किस तरह के होते हैं उसका डिस्कशन करते हैं। ओके, सो
You know that USA is a rich country, prosperous country, and it is blessed with vast fertile plains and extensive grasslands. यूएसए का जो लैंड है, प्लेन्स है, बहुत फर्टाइल है, बहुत बड़े एरिया में ग्रासलैंड्स है, और मेनली उसको कहते हैं द प्रेयरीज. सो द प्रेयरीज इन यूएसए, ये कहां से कहां तक फैला है? सो ए स्ट्रेच फ्रॉम द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट टू द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट. बहुत बड़ा है प्रेरी. द प्रेरीज इन यूएसए stretch from the Rocky Mountains in the west to the Great Lakes in the east. The prairies are located in the interior of the continent. इस कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में लोकेटेड है, इंटीरियर लोकेटेड, एंड thus experience continental type of climate. तो वो किस तरह का क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं? कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट. So, we have selected a farm in the Midwest region of the prairie grassland for our study. हम लोगों ने एक फार्म सेलेक्ट किया है जो कि मिड वेस्ट रीजन है प्रेरी का, प्रेरी ग्रासलैंड का. The natural environment here favors the cultivation of varieties of crops. यहाँ को जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसका फायदा क्या है कि ये कई तरह के क्रॉप्स को सपोर्ट करता है, फेवर करता है. क्रॉप्स लाइक व्हीट, कॉर्न, ओट्स, बार्ली, राई एंड ऑयल सीड्स. दिस रीजन एंजॉयज द फॉलोइंग एडवांटेजेस. देखो इस रीजन में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. द रोलिंग प्लेन्स आर वेल ड्रेन्ड एंड सुटेबल फॉर एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड फार्मिंग. जो रोलिंग प्लेन्स हैं वो वेल ड्रेन्ड हैं और बहुत सुटेबल हैं एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए, यानी एक लार्ज स्केल पे मशीनों द्वारा फार्मिंग के लिए. और जो वहां पे स्नो मेल्ट करते हैं उसकी वजह से वहां के सॉइल को मॉइस्चर मिल जाता है. सो मेल्टिंग ऑफ स्नो प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू सॉइल. उसके बाद जो वहां का सॉइल है, डार्क ब्राउन सॉइल, इट इज फुल ऑफ ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर. इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छे अमाउंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. एक और फायदा है कि जो स्प्रिंग सीजन है वो बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं होता और समर सीजन जो है वो बहुत ज्यादा हॉट नहीं होता. ठीक है. सो द स्प्रिंग सीजन इज नॉट वेरी कोल्ड एंड द समर्स आर नॉट वेरी हॉट. देन द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, जो कॉन्टिनेंट को आपस में जोड़ता है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे कनेक्ट्स दिस रीजन टू द कंज्यूमिंग सेंटर्स एंड द पोर्ट टाउन्स. ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे जो है वो प्रेरीज को कंज्यूमिंग सेंटर, जहां पर ये ग्रेन्स कंज्यूम किए जाते हैं, उसको बेहतर कनेक्ट करता है, और जो उसके पोर्ट टाउन्स हैं वहां पर भी कनेक्ट करता है, जिससे ये इजी ट्रांसपोर्ट हो जाता है. आफ्टर दैट, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द फार्म, देखो अमेरिका में यूएसए में जो फार्म्स है वो बहुत लार्ज साइज के हैं. सो जितने भी वर्क होते हैं वहां पे, फार्मिंग वर्क सच एज प्लगिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड पैकिंग आर डन बाय मशीन. ये सारी चीजें मशीन से ही करते हैं, चाहे वो प्लगिंग हो, सोइंग हो, हार्वेस्टिंग हो, थ्रेसिंग हो या उसको पैकिंग हो. ऑल आर डन बाय मशीन्स. वहां के जो फार्मर्स हैं, दे हैव ट्रैक्टर्स, टिलर्स, हैरोज, सीड ड्रिल्स एंड कॉम्बाइन हार्वेस्टर. कॉम्बाइन हार्वेस्टर क्या है? कॉम्बाइन हार्वेस्टर, ए कॉम्बाइन हार्वेस्टर इज अ ह्यूज मशीन which reaps, threshes and sacks the crops in one operation. ये बहुत बड़ा मशीन है और कई फार्म वर्क अकेले ये मशीन कर लेता है. So it is a huge machine which reaps, threshes and sacks the crop in single operation, in one operation. So the farm which we selected in the prairie grassland
हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? द साइज ऑफ द फार्म इज अबाउट 1000 हेक्टेयर, लार्ज लैंड फार्म। जो फार्म की साइज है वो कितनी है? 1000 हेक्टेयर है। इंडिया में ये बहुत कम है, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर। द फार्म इज ओन्ड एंड मैनेज बाय ए फार्मर एंड हिज फैमिली। इस फार्म का मालिक कौन है, इसको मैनेज कौन करता है? तो फार्मर और उसकी फैमिली। ज्यादातर जो काम है इस फार्म का, दैट इज डन बाय मशीन्स, वो मशीन से हो जाता है, तो लेबर को रखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेबर इज नॉट एम्प्लॉयड। क्रॉप रोटेशन इज प्रैक्टिस्ड टू रिटेन सॉइल फर्टिलिटी। आपने पढ़ा होगा जैसे क्रॉप रोटेशन क्या है। तो क्रॉप रोटेशन, सपोज करो कि जो क्रॉप ग्रोन करा रहे हैं, तो कई बार लगातार एक क्रॉप ग्रोन कराने से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, दूसरा क्रॉप उसकी जगह ग्रोन कराते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस ना हो, इंक्रीज हो जाए। तो इसी को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप्स आर ग्रोन और क्रॉप्स आर रोटेटेड, दैट इज क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन होता है यहां पे प्रैक्टिस में है, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी बनी रहे। आफ्टर दैट कॉन्टोर प्लगिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग आर ऑल्सो प्रैक्टिस्ड। ये इट इज ए फॉर्म ऑफ प्लगिंग, जिसमें कॉन्टोर प्लगिंग करते हैं और स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं। ये भी लंबे स्केल पर प्रैक्टिस में है वहां पर। साथ में वो लाइव स्टॉक इज रेज्ड टू सप्लीमेंट द फार्म इनकम। वो लाइव स्टॉक अपने पास रखते हैं, कैटल्स को अपने पास रखते हैं, जिससे कि उनका फार्म इनकम बढ़ जाता है। इट सप्लीमेंट द फार्म इनकम। द फार्मर एंड हिज फैमिली लिव ऑन द फार्म इन ए बिग हाउस। फार्मर और फार्मर की फैमिली जो है वो अपने फार्म पे ही रहते हैं, जो 1000 हेक्टेयर बहुत बड़ा लैंड एरिया है, वहां पे एक बहुत बड़े हाउस में रहते हैं। तो वो रहते भी अपने लैंड फार्म में ही है, जहां पर वो प्रोडक्शन करते हैं। देयर आर सेपरेट शेड्स टू कीप लाइव स्टॉक, फॉडर एंड मशीन। लाइव स्टॉक्स के लिए अलग वो बिल्डिंग बनाए रहते हैं, अलग शेड्स बनाए रहते हैं। उनको खाने पीने के लिए जो चीजें हैं, फॉडर है, उसके लिए अलग शेड्स, और जो मशीन जहां पे रखना है उसके लिए अलग शेड्स बनाते हैं, और खुद जहां रहना होता है वो अलग शेड्स में होता है। तो उनके पास लैंड की कोई कमी नहीं है। देयर इज ए स्मॉल वर्कशॉप टू मेंटेन द फार्म मशीनरी। वो एक छोटा सा वर्कशॉप भी बनाए रहते हैं, जहां पे सपोज करो किसी फार्म मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसको मेंटेन कर सके, इसको सही कर सके। द यील्ड पर हेक्टेयर इज मॉडरेट बट पर वर्कर इज वेरी हाई। अगर पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की बात करें तो वो ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन पर वर्कर के हिसाब से अगर उसको देखें तो इट इज वेरी हाई। आफ्टर दैट द फार्मर्स अर्न्स एनफ मनी टू मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अमेरिका के फार्मर्स बहुत हाई स्टैंडर्ड लाइफ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनका जो इनकम है वो बहुत हाई होता है। इवन वहां की गवर्नमेंट उनको बहुत सपोर्ट करती है। और एक चीज जान लो कि अमेरिका में कुछ ही लोग एग्रीकल्चर करते हैं, लेस देन 1%, लेस देन 1% आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वहां पे एग्रीकल्चर में जो काम करने वाले लोग हैं वो वहां के टोटल पॉपुलेशन का लेस देन 1% है। दैट्स वाई दे गेट लॉट्स ऑफ सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। So the farmers earns enough money to maintain a high standard of living in USA. Okay, students. So this was all about today's chapter. Today we have mainly discussed about agricultural development. So dear students, now it is my humble request to you people, please read all the topics carefully. And as you know that there are 6 chapters which are coming in your half yearly exam. So please read all the topics carefully. So that's all for today. Thank you and have a nice day.